Look at this question. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. So again, for proving this question, this statement, we are going to use the contradiction method. So according to contradiction method, you have to first consider that this number is not an irrational number. That means we consider that this will be rational. So consider it. If possible, let 3 plus 2 root 5 is a rational number. Is a rational number. That means what this implies? Write it just at the standard form. When we write it as, since it is considered as rational, that means it can be expressed in the form of p by q. इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime integers and q not equal to 0. q 0 के बराबर नहीं है. When you look at this number, students, then you can find that only this part, in the second term you can find that in the second part of this number contains the irrational number. 2 root 5 में हमें ये मालूम है कि 3 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन रूट 5 जो है irrational नंबर है. तो इस तरह के मेथड में जहां आपको कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, दैट मीन्स एक रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ा गया है, तब रिजल्ट भी क्या आएगा? इरेशनल आएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? इरेशनल पार्ट को एक तरफ रखते हैं और रेशनल पार्ट्स को एक दूसरी तरफ सेंड कर देते हैं. मीन्स हमारा मकसद है यहाँ पर रूट 5 को अकेला बनाना और बाकी सभी उसके साथ जितने नंबर्स जोड़े गए हैं या मल्टीप्लाइड हैं उनको दूसरी ओर सेंड कर देना. तो जस्ट लुक हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेंड 3 टू अदर साइड. सो वी हैव 2 root 5 is equal to p by q minus 3. Let's simplify it. So we have take the LCM, p minus 3q. Here we have 2 root 5. Now send this 2 to other side. Since it is multiplied with root 5, so दूसरी ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कुछ इस तरह से p minus 3q by 2q. आखिर इधर डिवाइड हो गया. So अब हमने we have separated here, we have separated the irrational numbers and the other numbers. अब हमें डिसीजन लेना है कि क्या ये जो सिचुएशन आया यह पॉसिबल सिचुएशन है कि नहीं है. यू कैन फाइंड दैट p and q आर इंटीजर्स. p and q आर इंटीजर्स और हम जानते हैं कि when we multiply two integers, then the result again an integer. When we add two integer or subtract two integer, then again result is an integer. और जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से भाग लगाते हैं, then we have a rational number. Here you can find that as a rough we can write here, since p and q are integers
minus 3q each. p minus 3q and 2q are integers. ये integers हो गए. So when we divide one integer by the another, then we have a rational number. p minus 3q divided by 2q is a rational number. Is a rational number. तो यही चीज हमें यहाँ पर लिखना है. So right here, since p and q are integers, so p minus 3q by 2q is a rational number. Rational number. Now look at this situation. You can find that put the name it as I am erasing the another. So consider it as equation 1. You can find that this is the RHS of this equation. This number is as the RHS of this equation, and we decide that according to the value of p and q, since p and q are integers, so it is a rational number. But so when it is a rational number and root 5 is equal to this number, that means we can say that root 5 is again a rational number according to equality. चूंकि ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं और जब हमने इसे रेशनल नंबर के रूप में लिखा यहाँ पर, दैट मीन्स रूट 5 भी रेशनल हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं. लेकिन हम क्या जानते हैं, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता. दैट मीन्स इट इज ए कंट्राडिक्शन. यही स्टेटमेंट एक कंट्राडिक्शन के रूप में हमारे सामने आ रहा है. दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. जब भी हमें कंट्राडिक्शन मिल जाता है तब हम यही लिखते हैं कि हमने जो मानकर चला था, जो कंसीडर करके चला था, वो गलत था. यानी जो पहले गिवन था वही सही है. So since यहाँ p minus 3q by 2q is a rational number, so that from equation 1 root 5 is again a rational number. So on the basis of equation 1, root 5 is also a rational number. Root 5 is also a rational number, but we know that root 5 is an irrational number. Irrational number. तो हमने अपने सपोजिशन के आधार पर लाया कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, बट हम जानते हैं कि एक्चुअल में रूट 5 एक ही रेशनल नंबर होता है. दैट मीन्स वी गेट ए कंट्राडिक्शन. सो देयर इज ए कंट्राडिक्शन. यहाँ जो स्टेटमेंट है किसे कंट्राडिक्ट कर रहा है. हमने कंसीडर किया कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो
कौन सा स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पर? ये स्टेटमेंट इक्वेशन 1 कंट्राडिक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इरेशनल और रेशनल बराबर आ गए हैं। दैट मीन्स यह स्टेटमेंट गलत है। सो देयर इज ए कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Hence, 3 plus 2 root 5 is not a rational number. That means it is an irrational number. तो जहां भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स पर सॉल्व करने के लिए आए, वहां आप ऐसे इसी प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। तो हार्डली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस है हार्डली 2 और 3 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। सपोज डेट आपको यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको ये √5 को पहले अलग से इरेशनल दिखाना होगा, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। उसके बाद फिर ये पूरा स्टेप्स आपको दोहराना होगा, जिस तरह से इस सेकंड क्वेश्चन में स्टेप्स को किया गया है। उसके बाद फिर हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर यह क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आए तो बस आपको जैसा इस क्वेश्चन में बताया गया सेकंड क्वेश्चन में, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। Now some questions for you. Prove that √2 plus √3 is an irrational number. तो इसे भी इन तीनों क्वेश्चंस को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। बस अंतर यहाँ पर यह है कि इसे जब हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे दोनों ओर स्क्वायर करके बनाइएगा, और फिर उसके बाद जब दोनों ओर स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, मीन्स a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे एक्सप्रेस करेंगे, तब आपका यह क्वेश्चन फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा और उसे वैसे ही प्रोसीड करेंगे। तो when you solve such type of problem, so according to contradiction method, at first you consider that this is a rational number. That means you have to write √2 plus √3 is equal to p/q, where pq are co-prime integers and q not equal to 0. तो चूंकि दोनों नंबर में स्क्वायर रूट है, that means इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यू हैव टू टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। तो इसको दोनों ओर स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे जब हम, देन वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b is equal to p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अभी तक तो आपको पता है कि p और q इंटीजर p और q दोनों इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स डिवाइड करने पर ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए ये 2 सिंप्लीफाई हुआ और इधर ये 3 आया प्लस 2 रूट अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर, √6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ऐड किए तो कितना आया 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब उसी तरह का कॉम्बिनेशन हो गया जिस तरह का कॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था। अब आपको बस यहाँ पर √6 को सेपरेट करना है और बाकी नंबर्स को दूसरी ओर सेंड करना है। बस अंतर यहाँ पर यह है कि यह p स्क्वायर और q स्क्वायर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशनल नंबर ही है। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, देन फर्दर यू रीच एट दिस स्टेप, √6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5, और ये 2 इधर आकर जब डिवाइड होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। That means you have p square minus 5q square divided by 2q square. तो एक तरफ इरेशनल पार्ट आ गया और दूसरी ओर ये रेशनल पार्ट आ गया। तो ये पूरा चूंकि p एंड q इंटीजर्स
दैट मीन्स ये पूरा रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। अब बाकी का स्टेप्स आप खुद से फॉलो कीजिए, सेम स्टेप्स है, उसी प्रकार से आप इसे इसका इंड कीजिए। ओके, then solve all these 3 questions and you have to send the answer in the WhatsApp group.